Hello, sir. So in last class we have discussed about what is neo-Darwinism and modern इसको हम लोग we also call it as modern synthetic theory of organic evolution, where this theory was modified form of Darwinism along with the some recent scientists that are Weizmann, De Vries, Stebbins, Dobzhansky, Sewall Wright, Mayer. According to this theory, we have learned that formation of the factors which are responsible for the formation of new species are rapid multiplication, and next is the limited food and space. Third one is the struggle for existence. Fourth one is the genetic variation. In genetic variation, we have discussed about 5 points. First one is gene recombination, where the new combination of genes are actually caused by crossing over during gametogenesis. Basically, it is meiosis. Yes or no? And meiosis, we have two stages, meiosis 1 and meiosis 2. And meiosis 1, there is a complex stage that we call as prophase 1 has complex step that have 5 stages. That is PMAT, not PMAT. In meiosis 1 and meiosis 2, there is a PMAT stage, prophase, metaphase, anaphase, telophase, where in prophase 1, there are 5 complex steps that we have learned that लालोजी प्लेन से रिपिका दिखे मीन्स लेप्टोटीन जाइगोटीन इस तरीके से आपके पास 5 स्टेजेस थे. तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, जिनका साइनोप्लेनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही थी, जहां पर क्या हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था. नेक्स्ट वी हैव म्यूटेशन, एंड इन म्यूटेशन वी हैव कॉल्ड इट एज discontinuous source of variation. Next we have hybridization. It is the basically crossing over of genetically different in or more in one or more traits that we call as hybridization to get the more and more useful characters or the desired characters. Next we have gene migration and gene flow. When the migration of a section of population from one place to another place and population occurs at other place, the new the gene frequency change in the original as well as in the new population. So the new genes or the alleles that are added to new population, these are lost from the old population. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन माइग्रेशन बोलते हैं. and if this is occurring again and again, means it happens multiple times, then we call it as then it is called as gene flow. Next we have genetic drift. If the change in gene frequency occur by chance, if it is occur by chance, then we will call it as genetic drift. Clear? Next, write down the next point. The fifth one, Natural selection. fifth factor, that is natural selection. इसका explanation है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? What happened? कुछ नहीं sir. Next we have natural selection. In natural selection, basically it is a process in which the heritable variation enabling the better survival, also to use the resource betterly, yes or no, and reproduce and leave more large number of progeny, then the only the way that the species will survive, otherwise they will not survive. This is also we call it as reproductive fitness. Also use the resource in a better way. रिसोर्स को अच्छे से यूज कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन कर पाएगा, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कर पाएगा. जब ऐसा हो पाएगा तो फिर बहुत सारे प्रोजेनिस भी होंगे, तो जिनका ज्यादा प्रोजेनिस होगा वो उतने ज्यादा सर्वाइव करेगा. माइक्रोब्स वगैरह है या पैथोजेंस वगैरह है या फिर बैक्टीरिया वायरस वगैरह सर्वाइव क्यों कर पाता है? सिंस दे हैव प्रोसेस to produce a large number of progeny within a short period of time. That's why they are surviving. Clear? So in this point, write down the process. Natural selection is a process in which heritable variation which enables them
which enabling them to use the resource better and survival. Better survival are enabled. सर ये स्लाइड के पीछे आपने कुछ लिखा है क्या सर? No. ओके सर. Enabled to reproduce and live greater or more number of progeny. Is it clear? अरे यही तो था अपने पास नेचुरल सिलेक्शन ना, कि जो किसी एनवायरनमेंट पे ज्यादा सूट करेगा, जिनके पास जो उसके रिसोर्स को अच्छे से यूज कर पाएगा, अपने आप को ज्यादा हेल्दी करेगा, ज्यादा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस करेगा, ज्यादा प्रोजेनी होगा, तभी तो उसकी पॉपुलेशन डोमिनेट करेगी, तभी तो सरवाइव करेगी ना. हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? हाँ सर. Next, write down the next factor, that is isolation. Basically here isolation means reproductive isolation. What does it mean? Reproductive isolation. सर क्या मतलब है इसका? आज तक हम लोगों ने अलग अलग टाइप ऑफ आइसोलेशन सुना है, पर ये कैसा है, पर ये कैसा पॉपुलेशन है, ये कैसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. बेसिकली अच्छा, उससे पहले मैं बताऊं, किसी को मालूम है क्या हो सकता है ये चीज? एनीवन? एनीवन? नो? सर मतलब सेम स्पीशीज बट वो अलग अलग जगह रहते हैं. इसको आइसोलेशन बोलेंगे. मैंने बोला किसी रिप्रोडक्ट. और ब्रीड के साथ हाँ बोलो. मीटिंग. मीटिंग हो जाएगा. बेसिकली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होती है कि बेसिकली ये एक ऐसा बैरियर है एक अलग अलग स्पेसीज के बीच में, जो किसी अननोन स्पेसीज के साथ मतलब इंटरब्रीड ना कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके. वैसे तो होता नहीं है, लेकिन एक आपका एक्सेप्शन है जहां पर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन होती है, और वो आपके पास क्या है, डोंकी और हॉर्स का होता है. म्यूल कब बनेगा, हिनी हिनी कब, म्यूल्स कब बनेगा, हिनी कब बनेगा, याद है क्या तुम लोगों को? हेलो, हाँ. म्यूल्स कब बनता है? जब हॉर्स फीमेल. हेलो सर. हाँ सर, जब हॉर्स फीमेल हो तो हिनी बनेगा. हेलो सर. पूछा आपने. मुझे हिनी का नाम बता, हिनी कब बनेगा? जब हॉर्स हो मेल. हेलो सर. फीमेल है. अरे हाँ, आवाज आ रही है बेटा. और म्यूल्स कब बनेगा? डोंकी मेल. ये हमेशा याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है. ये एक ओनली एक्सेप्शन है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनकम्प्लीट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इनके पास है, क्योंकि बच्चे तो होते हैं लेकिन वो फर्टाइल नहीं. आवाज सुनाई नहीं दे रहा. अरे आवाज कैसे सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाओगे मैं अब अपनी आवाज? सुन रहे मेरी आवाज क्या? मेरी आवाज सही है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? आप लोग का इशू आ रहा है? सुन रहे हो कि नहीं? हेलो, अरे इको सुनाई दे रहा है क्या? यही मेरी आवाज है. हाँ. वो आपका नेटवर्क इशू है. तो मैंने क्या बोला आपको? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. बेसिकली इट इज द प्रोसेस, where there is segregation of population by some barrier which prevents interbreeding. Means the two species will not interbreed, will not produce
segregation. It is the segregation of population by some barrier, which prevent interbreeding. जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर भी मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक स्पेसीज स्पेसिफिक होती है। ऐसा नहीं कि किसी का भी गैमेट किसी के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा। याद है क्या आप लोगों को? हेलो, हाँ सर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जहां पर ऐसा हो उसी को क्या बोलते हैं? एक नया स्पेशीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन between the population due to certain barriers that leads to the formation of a new species. Is it clear to all of you? ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। आगे बढ़ो। सर बट मेटिंग नहीं होएगा ना? आप मेटिंग करो वाला क्या फर्क पड़ता है? वो होगा ही नहीं। फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो तो बच्चे कहाँ से होंगे? सिर्फ अपने पास आयु जो फैला जानने का है वो हॉर्स और डोंकी का है। सर इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है ना कि अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं। मैं अलग अलग प्लेसेस पे नहीं रहते हैं। कोई स्पेसीज ए है, कोई स्पेसीज बी है। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म ए है, कोई ऑर्गेनिज्म बी है। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि दोनों क्या होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए। अब ये मत कहना कि सर एक ह्यूमन ए में एक ए ले लिया, एक दूसरा ह्यूमन बी ले लिया मैं, और दोनों को रिप्रोड्यूस किया तो बच्चे आए नहीं, तो ये दोनों अलग अलग स्पेसीज हैं। सर आप फिर से बताओगे क्या? मैंने बोला कि एक स्पेसीज ए है, एक स्पेसीज बी है। ये वाला नहीं सर, वो स्टार्टिंग से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। मैंने इसमें ये बताया आपको कि जो आपका पहला वाला पॉइंट कंप्लीट है, नेचुरल सिलेक्शन। हाँ सर। हाँ, मैंने अगला बताया आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है? दोनों में एक जो सिंपल वर्ड का मतलब आपको पता है, आइसोलेशन मतलब दोनों अलग अलग चीज। हाँ कि ना? मतलब ये दो अलग अलग स्पेसीज के बारे में कहना चाह रहा है कि दो अलग ऑर्गेनिज्म अगर आइसोलेट है, किस बेसिस पर? कि वो आपस में इंटरब्रीड ना कर सके। सो मैंने क्या बोला? आइसोलेशन क्या है? एक सेग्रीगेशन है पॉपुलेशन का, कि दोनों को ग्रुप्स को अलग अलग रखता है बाय सम बैरियर विच प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग। मतलब कि दो कोई ऑर्गेनिज्म है, मैं उसी को पीछे समझा रहा था। एंड बेसिकली यहाँ पर आइसोलेशन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव मतलब क्या बोलते हैं उसको? जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। ये रहे कहीं पर भी, अगर मेटिंग कराने से अगर बच्चे हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक ही स्पेसीज से बिलोंग करता है। लेकिन ध्यान रहे वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होनी चाहिए और कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही क्या? मैं वही आपको समझा रहा था कि मान लो कोई स्पेसीज S1 है और कोई स्पेसीज S2 है। मान लो, मतलब चलो हम स्पेसीज अलग अलग नहीं कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म 1 है, कोई ऑर्गेनिज्म 2 है, दोनों को मेट कराया। हमें नहीं पता कि दोनों सेम स्पेसीज है नहीं है। अगर ऑफस्प्रिंग आया और वो भी कौन सा आया? फर्टाइल आया, इसका मतलब ये दोनों एक ही स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। हाँ कि ना? अब ये इसके लिए ध्यान रहे, ये भी फर्टाइल होना चाहिए और ये भी फर्टाइल होना चाहिए।
दोनों फर्टाइल होना चाहिए। ये मत कहना कि सर एक हम लोगों ने ह्यूमन 1 लिया और कोई दूसरा ह्यूमन 2 लिया, मतलब मेल और फीमेल लिया, और दोनों को हम लोगों ने सेक्स करवाया, मतलब मेटिंग करवाया, और इनके जो बच्चे हुए ऑफस्प्रिंग वो इनफर्टाइल स्टेरल हो गए, तो सर ये स्पीसीज हो ही कैसे हो गया? बोथ मेल एंड फीमेल शुड बी बिलोंग fertile. टू सेम स्पीसीज, मतलब नॉट सेम स्पीसीज, स्पीसीज तो अभी हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए। अगर फर्टाइल बच्चे पैदा कर रहे हैं इसका मतलब वो सेम स्पीसीज है, अगर नहीं कर रहे तो वो अलग अलग स्पीसीज है। अब वो पहला करने से तो बच्चा होगा ही नहीं, अगर होगा तो वो स्टेराइल होगा, Infertile होगा. मींस वी कैन से स्टेराइल। बात समझ में आई क्या? अरे अभी भी आई कि नहीं आई? हाँ. सबको आई? हाँ सर। सबने पिछला स्लाइड लिखा था क्या? हाँ. अगला लिखिए। सर एक सेकेंड, क्या हो गया? एक सेकेंड जाइए ना पीछे। अगला टॉपिक लिखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसमें ब्रैकेट में लिखिए सीवाल राइट इफेक्ट, सीवाल राइट इफेक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू बाद में कर लेना, पहले लिख लें, ठीक है ना। अगला लिखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट में, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो हम लोग जस्ट कुछ पहले बात किया था, इसको हम लोग दूसरा क्या बोलते हैं? सीवाल राइट इफेक्ट बोलते हैं, सीवाल राइट इफेक्ट बोलते हैं। कौन दिक्कत है यहाँ पर आप लोगों को बताइए? हेलो? नहीं. हाँ, बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है। अगर जीन देखो, हर पॉपुलेशन में वहां पे कुछ ना कुछ जीन की फ्रीक्वेंसी होगी क्या ना, एलील का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी, तो उसके जीन के फ्रीक्वेंसी में कोई अगर चेंज आता है बाय चांस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जैसे क्या हो गया? हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो गया। जैसे क्या हो गया? दोनों के बीच में कुछ ऐसा कंडीशन बन गया कि दोनों के पॉपुलेशन क्या हो गए? अलग अलग हो गए। एक पॉपुलेशन ए बन गया, कोई पॉपुलेशन P1 बन गया, कोई पॉपुलेशन P2 बन गया। कोई नेचुरल कैलेमिटीज आई तो कहीं पे कुछ सरवाइव किया, कहीं पे कुछ सरवाइव किया, या फिर कोई एपिडेमिक्स आ गया। जैसे अभी आप लोगों का कौन सा एपिडेमिक्स आया है? पेंडेमिक। अरे कौन सा आया है? कोरोना. हाँ, तो ऐसे कुछ आए तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं बाई चांस। और ऐसे कंडीशन में जो अगर आपको चेंजेस दिखे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो? बेसिकली इट इज रैंडम चेंज ऑफ जीन और एलील। जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या बोलते हैं? Allele. एलील। तो इट इज एलिलिक फ्रीक्वेंसीज हाँ सर। आवाज नहीं आ रही। इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। बात समझ में आई क्या? एंड दिस इज, ये जो अपना इफेक्ट है, ये जो साइंटिस्ट ने दिया, इट ऑपरेट्स रैपिडली इन स्मॉल पॉपुलेशन। छोटे पॉपुलेशन में, अरे छोटा पॉपुलेशन होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी भी तो उसी हिसाब से होगा ना, उसमें हमें चेंज ज्यादा दिखेगा। अब बहुत बहुत लार्ज पॉपुलेशन है तो हमें चेंज भी कम दिखेगा, मतलब नियरली नेग्लिजिबल। बात समझ में आ रही क्या? तो सवाल आपसे पूछा जाए
कि जेनेटिक ड्रिफ्ट या सिविल राइट इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, लार्ज पॉपुलेशन में या स्मॉल पॉपुलेशन में? अगर गूंगे नहीं तो आंसर दे दो। हेलो, आपने क्या पूछा? मैंने ये पूछा कि दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट और सिविल राइट इफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन में ऑपरेट होती है या स्मॉल पॉपुलेशन में? लार्ज नहीं, मतलब बहुत में से किसी कम जन को होगा ऐसा। कम जन को नहीं होगा। अरे कोई बहुत बड़े, मतलब मान लो ऐसा है ना, आपके पास एक गिलास पानी है, उसमें आपने क्या डाला, एक चम्मच नमक डाला या कोई कोई एक एक, एक चम्मच में आपने कलर डाला, तो और एक बहुत बड़ा तालाब है, दोनों जगह सेम चीज डाल लो, ज्यादा फर्क कहाँ पड़ेगा? ग्लास। हाँ, तो जहां पर कम है जिनकी फ्रीक्वेंसी तो वहां पर ज्यादा ऑपरेट होगी, ज्यादा कुछ चेंज दिखेगा। और जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा है उसमें अगर कुछ अगर निकाले तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको ये कहाँ पर दिखेगा, ये स्मॉल पॉपुलेशन में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? स्मॉल पॉपुलेशन में। सर स्मॉल। ये 7th पॉइंट नहीं होगा ना, ये अलग है ना? न्यू डार्विनिज्म खत्म हो गया क्या? हाँ, न्यू डायमेंशन खत्म हो गया, अब थोड़ा हम लोग अलग अलग थ्योरीज को पढ़ते हैं। क्लियर है क्या? उसमें से एक अपना एक सिविल लाइट इफेक्ट, ये अलग है, ये 7वां पॉइंट नहीं है। 7वां पॉइंट तो मैं लिखता लिखता ना उसमें, समझा क्या? हाँ सर ठीक है। क्लास के लिए आप लोग थोड़ा अपना नेटवर्क अच्छा रखा करो, ठीक है? इट विल ऑपरेट इन रैपिड इन स्मॉल पॉपुलेशन, लेकिन वहीं पर लार्ज पॉपुलेशन में उसका इफेक्ट आपको बहुत कम दिखेगा। समझने के लिए एक बहुत बड़ा समुद्र या एक सिंपली तालाब ही ले लो ना, या एक बड़ा सा बाल्टी ले लो, उसमें आप एक चम्मच कोई भी मतलब कोई भी चेंज देना चाहते हो तो कुछ स्मॉल चेंज उसमें भी कर लो, कुछ स्मॉल चेंज गिलास में भी कर लो, आपको और दिख जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? इट इज ड्यू टू, सर ये किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, मतलब हैबिटेट में एक अलग अलग इसमें बढ़ गया। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना ना। ये समझने के लिए मैं ये ले रहा हूँ कि एक बहुत बार आपके पास क्या था, एक हैबिटेट था, हाँ कि ना? अब बीच में क्या हुआ, यहाँ पे कोई लावा फूट गया, क्या हुआ, क्या क्या फूट गया? वैल्केनिक इरप्शन हो गया, तो बीच में एक बैरियर बन जाएगा क्या? हाँ। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो इधर का हैबिटेट कुछ और हो जाए और इधर का हैबिटेट कुछ और हो जाए, मतलब कुछ इधर इधर ऊंचा हो जाए, इधर नीचा हो जाए, या इधर पूरा का पूरा बहुत हाई रहे और इधर पूरा खाई गड्ढा वगैरह कुछ भी पानी वगैरह से बन बन जाए, या पानी वगैरह का डिपो बन जाए, या फिर तालाब वगैरह बन जाए, तो दोनों का हैबिटेट अलग अलग हो जाएगा ना। इस तरीके से हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन भी होती है। कोनो दिक्कत है क्या? समझ में आया? हाँ सर। हाँ, इट इज ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। अगला बोला मैंने आइसोलेशन। नेक्स्ट वी हैव नेचुरल। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डार्विन ना, अगर आइसोलेशन था तो वो एक्चुअली सिर्फ वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन था और रिप्रोडक्टिव फिटनेस था। बात समझ में आ रही है क्या? नेचुरल कैलेमिटीज और एनी एपिडेमिक्स
दैट इज फॉर एग्जांपल नाउ वी हैव पेंडेमिक, और पेंडेमिक के नाम पे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ लूटा है, आगे ना, लोगों को तंग किया है, परेशान किया है, कुछ भी किया, पता नहीं क्या किया है। So from this effect we have two further effect, जिसका जहां से हम लोग उसको समझते हैं, जहां से हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। सर जेनेटिक ड्रिफ्ट है, तो इनको समझने के लिए आपके पास दो एक और अलग इफेक्ट है। सर कौन कौन से इफेक्ट है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको दो टर्म मिला होगा, एक फाउंडर इफेक्ट है, एक बोटलनेक इफेक्ट है। पढ़ा है क्या? तो हम लोग आगे बढ़े। से एक सेकेंड। हाँ सर। अगला इसी के थोड़ा सा इसी के पॉइंट में थोड़ा हेडिंग बना के लिखिए। फॉर्म ऑफ जेनेटिक फॉर्म्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। पहला आपका क्या होगा? फाउंडर इफेक्ट, जो आपसे नाम से लग रहा है कुछ फाउंडर जैसा है, मतलब कुछ अपने इनिशियल प्लेस पे होगा। क्लियर है क्या? दूसरा है आपके पास बोटल नेक इफेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो, जैसे मैंने समझने के लिए क्या लिया, एक बहुत बड़ा सा पॉपुलेशन लिया। क्या लिया? बहुत बड़ा सा पॉपुलेशन लिया। हेलो, यस सर। अरे तू मोबाइल से क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है? मोबाइल से कर लेना, क्या दिक्कत है तेरे को? मोबाइल से कर ले। ये क्या होगा? आपके पास पॉपुलेशन हो गया। मान लो इसमें से ये वाले सेक्शन क्या हुआ कि द सेक्शन ऑफ दिस पॉपुलेशन गेट आइसोलेटेड और माइग्रेटेड or drifted from this original population to another place or another habitat. Yes or no? So जब ये अलग जगह जाएगा तो वहां का habitat भी तो अलग अलग होगा ना यार, there will be different habitat. So somewhat क्या होगा, ये जो आपका ओरिजिनल पॉपुलेशन है और जो जहां पे नया पॉपुलेशन बनेगा, न्यू पॉपुलेशन बनेगा, दोनों के बीच में क्या होगा? क्योंकि हैबिटेट के हिसाब से क्या होती है, कुछ जीन्स में चेंजेस भी आती है। सो दैट विल लीड टू चेंज इन द ओरिजिनल, मतलब कि ओरिजिनल के कंपेयर में जो नया वाला पॉपुलेशन उसमें क्या होगा, कुछ चेंजेस आएगी। सो जेनेटिकली ये दोनों पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। yes or no? यस सर। And this is due to the change in allelic frequency because of the gene pool of this section contains some allele which are in low frequency. मान लो ये वाला जो पॉपुलेशन था, देखो पॉपुलेशन है, इसमें कुछ जीन जो एलील की फ्रीक्वेंसी होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। हम लोग कुछ जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे किसकी जीन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, जिनकी मतलब उसकी प्रेजेंस भी ज्यादा होगी, और जिनका फ्रीक्वेंसी कम है तो पॉपुलेशन में कम होगा ना। अब इसमें से कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन अगर अलग हो गया, अब यहाँ जो वो इंटरप्रेट करेगा, मतलब कि नॉट इंटरप्रेट, जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो जो उनका लो फ्रीक्वेंसी वाला वो भी तो एक्सप्रेस होएगा कि नहीं होएगा? तो इसका मतलब इनका एक्सप्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे उसे जो जीन्स का कंपोजिशन था वो चेंज होगा कि नहीं होगा? सारे बच्चों को समझ में आ रही है? कोई मान लो जीन 1 था, कोई जीन 2 था, जीन 3 था, जीन 4 था, सबकी हर जीन की हर एलील की अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब ऑकरेंस, कोई ज्यादा है कोई कम है, कोई ज्यादा है कोई कम है। अब यहां से क्या हुआ, मान लो ये वाला चीज अलग हो गया, लेकिन ये इनिशियल पॉपुलेशन में इसका
ऑकरेंस मतलब इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। अब फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं, जो नंबर ऑफ जीन जो होती है या एल होती है, और हम उसका पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं ना, पर पॉपुलेशन, उसका हम लोग क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है, जीन की फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब पूरा का पूरा पॉपुलेशन के यहाँ के लिए निकालेंगे हम लोग, तो जिसका जीन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे कुछ और होगी और यहाँ पे कुछ और होगी, दोनों जगह डिफरेंट होगी कि नहीं होगी। जीन की वजह से क्या होगा, ये जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो सर आप वो छोटा सर्कल एंड बड़ा सर्कल की बात कर रहे हो ना, मैंने मतलब ज्यादा यहाँ पॉपुलेशन कम यहाँ पर एक पॉपुलेशन। ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन है जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे देख रहे हैं। इनका कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन यहाँ से हट के किसी और हैबिटेट में चला गया। हर ऑर्गेनिज्म के पास हर पॉपुलेशन, अच्छा हम लोग बात करें जीन की फ्रीक्वेंसी ना, तो ये हम लोग पॉपुलेशन में देखते हैं। जीन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कुछ उसी टाइप का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी होती है। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है कि जीन का प्रेजेंस इन द टोटल पॉपुलेशन, दैट इज द जीन फ्रीक्वेंसी। कुछ जीन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो जो ज्यादा होती है वो ज्यादा एक्सप्रेस करेगी, मतलब पॉपुलेशन में उसका नंबर भी ज्यादा होगा, उसका ऑकरेंस भी ज्यादा होगा। जिनका जीन फ्रीक्वेंसी कम है उनका पॉपुलेशन भी कम होगा, वो एक्सप्रेस भी कम करेगा। अरे हाँ कि ना, कुछ हाँ डोमिनेंट है कुछ रिसेसिव है। तो जैसे यहाँ पे ये दोनों अलग हो जाएगा, तो जो ये मान लो ये ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ ये सेलेक्टेड मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो रिप्रोड्यूस भी तो लिमिटेड के साथ करेगा ना ये। यहाँ पे तो बहुत भतेरे हैं, इनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम है ना, तो रिप्रोड्यूस इन्हीं के साथ करेगा। तो जो जो भी इनके पास अब चाहे हार्मफुल हो या बेनिफिशियल हो, ये सारा का सारा एक्सप्रेस होता जाएगा। तो इनकी जीन की फ्रीक्वेंसी कुछ और हो जाएगी, ये वाले की जो यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट कर गया, और जो ओरिजिन वाले की इनकी अलग अलग तो थी। तो कुछ चेंजेस ये वाले जो यहाँ वाला पोर्शन जो यहाँ आ गया, इसमें कुछ चेंजेस आएगा, कुछ चेंजेस को यहाँ पर दिखेगा। तो दोनों का जेनेटिकली डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। सारे बच्चों को समझ में आ रही है? हाँ सर। So sometimes what happens is that the change in allelic frequency is so different that the new sample of population that they become a different species. मतलब इससे ये बिल्कुल ही अलग, ये जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन है ना, इसके मुकाबले में ये वाला बिल्कुल ही अलग दिखेगा, बिल्कुल ही अलग दिखेगा। So this original drifted population को हम लोग क्या बोलते हैं? That becomes the founder. That becomes the, ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन यहाँ से आया था, इस जो यहाँ पर आ चुका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाउंडर बोलते हैं। फाउंडर। और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फाउंडर इफेक्ट। कोई दिक्कत? एनी डाउट? नहीं सर। कभी इस भरोसे में मत रहना कि सर हम नीट में के लिए पढ़ेंगे तो वहां पर डाउट क्लियर कर लेंगे, वहां पर सेम चीज पढ़ाया जाएगा, ध्यान रहे। हाँ, तो आपका पहला इसमें लिखिए फाउंडर इफेक्ट में, हाँ, when a section of population, when a section of population get isolated or migrated जैसे अभी हुआ था ना माइग्रेशन वाला चीज जॉब होल्डर्स के लिए, कि कुछ लोग दिल्ली से पैदल घर जा रहे हैं, कुछ लोग मुंबई से पैदल घर जा रहे हैं। याद है कि आप लोगों को टीवी में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग जॉब की तलाश में यहाँ जाते हैं, कुछ वहां जाते हैं। फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल population, then
this section becomes genetically different. Genetically different from the original population. Due to change in allelic frequency. इतनी बात समझ में आई आप लोगों को क्या? यस सर। हाँ सर। सबने यहाँ तक लिखा? नो सर। हाँ सर। जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था ना नेचुरल सिलेक्शन, ये वाला पॉइंट, इसमें हमने क्या लिखा था? प्रोसेस इन विच द हेरिटेबल वेरिएशन एनेबलिंग द better survival of enabled to reproduce and leave greater number of progeny. इनकी वजह से क्या होगा कि जो उनके बीच का क्या है, जो जीन का फ्रीक्वेंसी है, जो जीन का अवेलेबिलिटी है, सो एक इसमें हम लोग अगर एनालिसिस करें कि जो वेरिएशन वगैरह होती है ना, जिनके उनके वेरिएशन होने की वजह से क्या होती है, उनके फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, उनके जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आता है और एलील की फ्रीक्वेंसी में बदलाव होता है इन फ्यूचर जनरेशन। सो इन्हीं की वजह से क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव सक्सेस होती है, नेचुरल सिलेक्शन, दैट इट मेक्स और इट लुक लाइक्स अ डिफरेंट स्पीशीज और डिफरेंट पॉपुलेशन दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। समझे क्या? जो उसका जीन का फ्रीक्वेंसी है, एलील का फ्रीक्वेंसी, इसमें जो वेरिएशन हो रही है, इनके वेरिएशन के होने की वजह से इनके फ्रीक्वेंसी में बदलाव पड़ेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी में बदलाव पड़ेगा तो ये दोनों अपना जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था और जो ऑलरेडी जिसमें हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं, उसमें अब दोनों में कुछ डिफरेंट लगने लगेगा। दे लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इट मींस दैट इज द न्यू स्पीशीज फॉर्म। समझ में आ रही है? हेलो? हाँ सर। इसका रीजन लिखिए, बिकॉज किसका, अभी जस्ट जो पॉइंट लिखा फाउंडर इफेक्ट में, दिस इज बिकॉज द जीन पूल जिसमें हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसका दैट कंटेन some alleles which are in very low frequency, which are in very low frequency और में
lack few alleles. जब इसको एक्सप्रेस होने का मौका मिलेगा तो सारे भरपूर मात्रा में एक्सप्रेस होंगे कि नहीं होंगे? हेलो, होंगे। so what will happen? Sometimes what happen is that the change in allelic frequency, the change in allelic frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. क्लियर है क्या? so original drifted population becomes founder. अरे फाउंडर तो वे होता है ना जो फाउंड करते हैं आगे ना, या जहां से फाउंड होती है। अरे होती है कि नहीं? यस सर। एंड द इफेक्ट इज नोन एज the effect is known as फाउंडर इफेक्ट। कोई दिक्कत है क्या? किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही है बताइए। नहीं सर। सबके भेजे में बात आ रही है क्या? हाँ सर। आगे बढ़ो। हो गया सर। Should I proceed? यस सर। हाँ सर। अगला लिखिए कौन सा? बॉटल बॉटल नेक। बड़ी हंसी आ रही है आप लोगों को, हैं? सब इसको पता नहीं कौन सा। चलो कोई नहीं। बेसिकली हम लोग बॉटलनेक इफेक्ट उसको बात करते हैं कि बेसिकली दीज आर द बॉटलनेक, मतलब बॉटल से ही नहीं आया है, इसको एक टर्म यूज किया गया है। बेसिकली दीज आर द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक है, आपके पास वोल्केनिक इरप्शन है, फ्लड है, स्टॉर्म्स है, जिनकी वजह से देयर इज अ सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट। यस और नो? अरे जैसे मान लो क्या हुआ, कहीं लावा फूट गया, क्या फूट गया? भूम करके लावा फूट गया। तो जो मान लो कुछ ऐसे कोई प्लेन या सरफेस था, अब यहाँ पे लावा बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा क्या, और यहाँ से मैग्मा स्मैग्मा वगैरह निकलता रहेगा, हाँ कि ना, और ये गिरता रहेगा। अब तुम लोग तो आराम से एसी की तरह आसपास रह लोगे ना? हाँ जी, हेलो, अरे आप लोग रह लोगे ना? अरे आप लोग तो उस हैबिटेट के लिए हैबिचुअल हो ना?
हेलो, कौन सा हैबिटेट से कुछ समझ नहीं आता, किसी बोलो। मैंने बोला लावा फूटा, लावा, ज्वालामुखी। के अंदर कैसे आऊंगा? हाँ मतलब मान लो आप लोग वहाँ पे कहीं पार्क में घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे लावा फूट गया, तो आप लोग आराम से रह लोगे ना? नहीं सर, बिगड़ जाएंगे। पिघल जाओगे? मतलब हाँ सर, ऐसे पढ़ा था पहले। चलो कोई नहीं। तो इसका जो यहाँ का टेम्परेचर है ना बहुत ज्यादा होता है, मतलब इनका इफेक्ट बहुत दूर तक होती है। जो लोग इनकी चपेट में आते हैं उनका बचना मुश्किल, मतलब जो इसके अंदर आ गए तो खैर वो तो खैर गया, लेकिन जो इनके आसपास भी होते हैं ना इनके हीट से वो बच नहीं पाते हैं। हाँ यही बोल रहा था सर। बिल्कुल उसका कोरमा बनाया जाता है, हाँ कि ना? कोरमा क्या, बिल्कुल उसको ऐश बना देता है, ठीक है ना? सो क्या होगा, इनके ऐसा होने की वजह से या अर्थक्वेक हो रही है या कोई आपके पास फ्लड वगैरह आता है या आंधी तूफान आता है, तो इनकी वजह से तो जो जो एनवायरनमेंट थी उसके इसमें कुछ बदलाव आएगा क्या, जिनकी वजह से कि दैट ड्रेस्टिकली रिड्यूस द साइज ऑफ पॉपुलेशन, बहुत सारा मर जाएगा, बहुत सारा कुचल जाएगा, बहुत सारा अर्थक्वेक के बीच में दब जाएगा, आगे ना? नाउ जो मान लो पहले 1 मिलियन पॉपुलेशन था उस इन्वायरमेंट में, अब वो घट के कितना हो गया? 0.5, आधा गया काम से, आधा। 0.5 मिलियन गया काम से, बचे कितना? 0.5 मिलियन, हाँ कि ना? सो दिस द पॉपुलेशन दैट मे बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन, क्योंकि ये अब हाइब्रिड बदल जाएगा तो उनके उसके एलियंस में भी कुछ बदलाव आएंगे, क्या इसमें ट्रेड्स में भी कुछ बदलाव आएंगे, जिनकी वजह से उसमें क्या होगा, जीन्स के में भी बदलाव आएगा, आगे ना? So that will look or that will be different from the original population. So there are certain alleles that may be have more frequency among the survivors and other may have less. Some may be also absent होगा, किसी में ऐसा जीन की फ्रीक्वेंसी जो कि absent हो सकती है और किसी के पास ज्यादा होगी तो वो ज्यादा सर्वाइव करेगा, आगे ना? किसी के पास नहीं भी हो सकती है या किसी के पास कम हो सकती है, किसी के पास absent भी हो सकती है। सो इफ अ पॉपुलेशन दैट हैज पास थ्रू अ बॉटलनेक, मतलब कि इस तरीके से नेचुरल कैलेमिटीज के साथ अल्टीमेटली रिकवर्स इस साइज, धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करते 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 अपना साइज अगर रीगेन कर लेता है, इट मे हैव लो जेनेटिक वेरिएशन, इट मे हैव लो जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि वो उतने में ही तो अपना पॉपुलेशन बढ़ा है ना। जेनेटिक वेरिएशन जब ज्यादा ना, जब उनके पास जो पूरा का पूरा जो जीन्स का सेट था तभी तो ज्यादा उसका हो पाता। हेलो, इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका ओरिजिनल पॉपुलेशन था और जो अभी वाला है, दोनों बोथ विल बी डिफरेंट, सो दिस में प्रोड्यूस अ न्यू स्पेशीज। मेरी बात समझ में आई? हेलो हेलो, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। एक बार मैं जवाब दे दिया करो, ठीक है? दोबारा बताऊं क्या? मैंने बोला कोई पहले आपके पास क्या थी, इन्वायरमेंट थी, क्या थी? सब लिखने के बाद समझ जाएगा। तो लिखाऊंगा ना उसके, उसके लिए क्या क्या लिख रही है? हाँ अगला लिखिए, इसमें बोटल नेक में बेसिकली दीज आर, ये जो बोटल नेक है इसका मतलब क्या है यहाँ पर? आप डेफिनेशन लिखवा रहे हो ना? हाँ डेफिनेशन क्या है इसके अंदर का पॉइंट, कि दीज आर द natural calamities like earthquake, volcanic eruption, floods, storms, etc, जिनकी वजह से the sudden change
in the environment, yes or no? In the environment, में ड्रेस्टिकली चेंज, अचानक ही बदल भी सकता है इनकी वजह से। In the environment may drastically change the size, yes or no? Reduce the size of population. And now this population may be genetically different from the original population. Clear? And in this there is other possibility. Certain alleles may have more frequency among the survivors, जो उस टाइम सर्वाइव कर गए। Other may be less and some may be absent. Some may be absent altogether. इतना लिखा गया? हाँ सर। सबका हुआ? सर ये नेचुरल सिलेक्शन जैसा ही है ना? जैसे आपके पास क्या है, नेचुरल सिलेक्शन जैसा है। ये एक थ्योरी है जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। जो अपने को नया स्पीसीज का कैसे फॉर्मेशन होती है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। नया स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे होती है हम लोग उसको समझते हैं इन थ्योरीज के हेल्प से। समझे क्या? हाँ सर। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज दिया है तो हम लोग उसकी बात करते हैं। सो इसमें एक लास्ट पॉइंट लिखिए, अगर ऐसा पॉपुलेशन जो ऐसे बोटल नेक से पास हो और वो फाइनली अपना, जो मैंने तो कुछ ज्यादा ही कम कर दिया था, या ऐसा हो भी सकता है ऐसा भी हो कि आधा पॉपुलेशन खत्म हो जाए, फिर जब वो अपना वो पूरा का पूरा जितना इनिशियल पॉपुलेशन था उतना नंबर में रिगेन कर ले, तो इसी तरीके से, और वो भी कैसे होगा, एक जेनेटिक लेवल पे काफी कम वेरिएशन होगा, क्योंकि ये कम ही में से, अरे हम लोगों ने पढ़ा था क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन में, कि जहां पर अगर हम लोग ब्रीडिंग कराते कराते एक टाइम ये आते नहीं कि होमोजाइगोसिटी आती है, तो वहां पर कोई वेरिएशन नहीं आती है, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला था। हाँ। तो कुछ अगर सेम यहाँ पर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेरिएशन होगा ना। अब मान लो क्या है कि आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और वहां पे उसकी उस कम्युनिटी की मैरिज सिर्फ वहीं पर होती है,
तो उनके बच्चों में कुछ ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा क्वालिटी नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या होता है, फिर दूर दूर दराज में, लॉन्ग डिस्टेंस में, या फिर अलग कम्युनिटीज में, अलग जगह में जाकर शादी की जाती है। फिर दोनों का कैरेक्टर मिला करके तब जाके अच्छा कैरेक्टर आता है। कि ना, एक अच्छा तेज तरह दिमाग वाला बच्चा प्रोड्यूस होता है। और इसके लिए कहाँ से आएगा, तेरे मम्मा के पास भी कैरेक्टर अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, फादर के पास भी अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। और एक कैरेक्टर कहाँ पे होती है, जीन्स में होती है, मतलब एलील्स में होती है। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने क्या बोला, इफ अ पॉपुलेशन that has passed through bottleneck, बोटल का मतलब बोटल का नेक नहीं है, ये वो नेचुरल कैलामिटीज है। नेचुरल। अल्टीमेटली रिकवर्स इट्स साइज, अल्टीमेटली रिकवर इन साइज but it may have low level of genetic variation. For a long period of time. हेलो बेटा, वेट अ मिनट, मैं इसको कंप्लीट थोड़ा वेट करना। फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिनकी वजह से आपको पहला वाला पॉपुलेशन और अभी वाला पॉपुलेशन में कुछ डिफरेंस दिखेगा, और इसको हम लोग नया वाले को क्या बोलेंगे, एटिवलिविया, जिसमें प्रोड्यूस अ न्यू स्पीशीज। ये बात समझ में आई क्या? जिसमें प्रोड्यूस अ न्यू स्पीशीज। क्लियर है क्या? यस सर। कुछ देखिए थोड़ा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। आ रहा है। यहाँ तक आप सबको समझ में आया क्या? हाँ। कोई दिक्कत? एक No, अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल हर साल बनते हैं और न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। अरे नाम सुना है क्या? नहीं सर। आप सुन लिया? आप सुना कि नहीं? हाँ। हाँ, बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हम लोग किसी पार्टिकुलर गिवन पॉपुलेशन की बात करते हैं, वहां पर उसके हम लोग जीन्स की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एलील की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो वहां पे कुछ एलील डोमिनेंट होगा, कुछ रिसेसिव होगा, दोनों का कंबाइंडली वे में बात करते हैं, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। क्लियर? So in Hardy-Weinberg principle, we talk about in a given population, one can find that frequency of occurrence of allele of a gene or a locus
This frequency is supposed to be remain fixed and even remain same through the generation. मान लो अगर उसके पूरा का पूरा कंबाइन के अगर एलील की फ्रीक्वेंसी 1 था, ये थ्रू आउट द जनरेशन ये सेम रहेगा। हाँ, कुछ चीजें अपसेंट होनी चाहिए, वो क्या हम लोग देख लेंगे। मतलब जो जीन की इनका सारे का सारा सम अप था, अरे जैसे आप लोग क्या बात करते हैं, जैसे आप लोग अगर वो खेलते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, लूडो वाला क्या क्या बोलते हैं, अरे वो खेलते हो क्या, लूडो खेलते हो ना। तो उसमें हर एक की जो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 होती है क्या? हाँ लेकिन सबका मिला के प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 ही तो आएगा ना, कंबाइनली तो 1 आएगा ना। चाहे हाँ। चांस 1/6 है, चाहे 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का, किसी का भी हो, आगे ना। और पूछेगा कि ऑकरेंस ऑफ क्या बोलते हैं ऑड इवन नंबर, तो कितना हो जाएगा, 2, 3 एंड 6, तो 3/6 मतलब 1/2 आएगा। अरे हाँ कि ना। वहीं पर पूछेगा आपका ऑड नंबर, तो इट विल आल्सो 1/2 1/2। अगर पूछेगा प्राइम नंबर देन 2/6, 2/6। आगे ना। तो ये इस तरीके से हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, टोटल अपॉन मतलब ऑकरेंस अपॉन दियर टोटल। तो यहाँ पर उसी तरीके यहाँ पे बात करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, किसी गिवन पॉपुलेशन के अंदर जो जीन की फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा एक फिक्स रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द जनरेशन। बात समझ में आ रही क्या, कैसे होती है? जैसे समझने के लिए मैंने बात किया, एक आपके पास जो डोमिनेंट को कैपिटल ए से लिखते हैं और रिसेसिव को स्मॉल ए से लिखते हैं, ये आप सबको मालूम है क्या? अरे मालूम है क्या? हाँ हाँ, तो ए है जो डोमिनेंट वाली एलील है, उसके फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग स्मॉल पी का यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो रिसेसिव वाला है इसके लिए स्मॉल क्यू का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आई? P stands for here dominant allele A and Q stands for recessive allele small a। तो ये थ्योरी आपसे ये कहता है, इसको हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। एंड इन दिस जेनेटिक इक्विलिब्रियम द सम टोटल ऑफ ऑल एलील्स और एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ गिवन पॉपुलेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सर क्या मतलब? P plus Q should be equal to 1। यही है आपका हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, आगे ना। जब हम लोग इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा, और इसका होल स्क्वायर कर लो ना, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। कैसे कैसे? अच्छा, इसका क्या मतलब है? जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसका फॉर्मूला, इसका एक्सपेंशन क्या होती है, भूमिका भूमिका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब क्या इसका एक्सपेंशन क्या होती है बताइए? a square plus b square plus 2ab। तुमको आता है यार, मैंने कहा तुमको। तो मैंने क्या बोला, कि a स्क्वायर है, b स्क्वायर है और 2ab है। मतलब बेसिकली इसको अगर इससे कंपेयर करें तो क्या होगा, p स्क्वायर हो जाएगा, 2pq हो जाएगा और q स्क्वायर कर लो, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1। सर को समझ में नहीं आया सर, ये p वाला क्या है, तो ये डोमिनेंट एलील कैपिटल ए है। सर q क्या है, तो रिसेसिव एलील स्मॉल है। सर ये वाला क्या है, ये तो होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। सर ये वाला क्या है, हेट्रोजाइगस है। क्या है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या तुम लोगों को? हेलो, क्या है? हेट्रोजाइगस है। क्या है? हेट्रोजाइगस। अभी समझ में नहीं आया क्या? समझा सर? हाँ, तो हियर p स्क्वायर डिनोट्स फॉर कैपिटल ए, q स्क्वायर डिनोट्स फॉर स्मॉल a, and 2pq here denotes for कैपिटल कैपिटल ए स्मॉल ए। सवाल आपसे पूछेगा कि इसका फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका परसेंटेज कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, क्या आप उसको मालूम कर सकते हो क्या? हेलो हेलो
हेलो चेक। यस सर। बात सब भेजे में बात जा रही है क्या? भेजे में बात गई? सर आप बताइए एक बार। थोड़ा सा कुछ इसका टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए, फिर दोबारा आते हैं वापस। अच्छे से समझ लेना, इसमें हर साल नीट में सवाल पूछता है। यकीन ना है तो 33 ईयर्स वाले जो निकाल के देखो, मिल जाएगा। हाँ, बेसिकली हम लोग किसमें क्या क्या बात करते हैं? गिवन पॉपुलेशन की बात करते हैं। इन अ गिवन पॉपुलेशन, ऐसा नहीं कि कभी इसकी बात कर कभी उसकी बात कर रहे हैं। इन अ गिवन पॉपुलेशन हम लोग किसकी बात करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलील की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस। एक बच्चा आज क्लास में बोल ही नहीं रहा है, या उसको क्लास में है नहीं वो, या क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसको। ऑफ अ जीन और अ लोकस। क्लियर है क्या? एंड दिस फ्रीक्वेंसी, and the frequency is supposed to be remain fixed, supposed to be remain fixed, remain fixed and even remain same, remains the same through the same generation, through the generation। बतवा समझ में आई क्या तुम लोगों को ये वाली बात? हेलो? हाँ सर। कितना लिखा आप लोगों ने क्या? And this principle says, in this principle, what does it says? That allele frequency frequencies in a randomly mating population, in a randomly, मतलब हम लोग सेलेक्ट तरीके से नहीं करवा रहे हैं, हाइब्रिडेशन नहीं करवा, रैंडमली जो अपने आप जो हो रहा है, जो नेचुरली जो हो रहा है वही। अरे जब आप लूडो खेलते हो तो रैंडमली आता है ना, आप जानबूझ के तो कुछ लेके नहीं आते हो। तो हेलो? यस सर। randomly mating population are stable। क्या बोला मैंने? allele frequency in a randomly mating population are stable and it is constant, from generation to generation, बात समझ में आई क्या? हार्डी विनबर प्रिंसिपल आपसे ये कहता है। आई थिंक मैंने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था, या कहाँ पर? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। याद है क्या तुम लोगों को? तो क्या था? कुछ नहीं था। लिखा गया इतना? हाँ। सबने लिखा? आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। अगला लिखिए इसी का, देखो अभी उसी टॉपिक के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग। अगला लिखिए जीन पूल। क्या है? आप लोगों ने प्रिंसिपल इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा जीन पूल के बारे में। इट इज द टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स। अरे जीन पूल नहीं पढ़ा है क्या?
पढ़ा है। तो क्यों बोल क्यों नहीं रहे हो? इन अ पॉपुलेशन, क्लियर? एंड जीन पूल इट रिमेन कांस्टेंट, इट, ये जीन पूल है इट रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ कि ना? ये होगा आपका जीन पूल का डेफिनेशन, एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कहाँ लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने? रिमेन्स कांस्टेंट, क्लियर? और इसी को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड, एक मिनट, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अब बात समझ में आई तुम लोगों को? ये वाली डेफिनेशन थ्योरेटिकल बात समझ में आई क्या? हाँ न्यूमेरिकल भी आएगा, क्लियर है क्या? और इसमें इसी के अंदर अगला पॉइंट बना के लिखिए, द सम टोटल ऑफ ऑल एलील, all the allelic frequencies, it should be is equal to 1। क्या मेरी बात तुम लोगों को भेजे में गई क्या? हेलो, अरे बोलो तो। हो गया सर, हो गया है? समझ में नहीं है? समझा। सर ये लेक्चर और कितना मतलब और कितना लगेगा सर चैप्टर खत्म होने के लिए? पढ़ते चलो। सर ये कौन सा लेक्चर है अभी? 11वां। सर गए।